देश में जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, कई राज्यों में अनलॉकिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन वैक्सीनेशन एक ऐसा मुद्दा है जो अभी भी चुनौती बनकर राज्यों के सामने खड़ा हुआ है। 2 राज्यों ने वैक्सीन शॉर्टेज की बात कही है। प्रोडक्शन और सप्लाई गैप इसकी वजह बताई गई है। आपको बता दें, ये 2 राज्य हैं तमिलनाडु और दिल्ली। तमिलनाडु रोजाना करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है और अब उसके पास केवल 6 दिनों का वैक्सीन स्टॉक बचा हुआ है। वहीं राजधानी की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में 45 वर्ष से अधिक लोगों के टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक केवल 4 दिनों का ही बचा हुआ है। चलिए पहले आपको विस्तार से जानकारी दे दें तमिलनाडु की स्थिति की कि वहां पर वैक्सीनेशन का हाल क्या बना हुआ है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर अगर अगले 2 दिनों तक वैक्सीन नहीं पहुंचती हैं तो राज्य में वैक्सीनेशन ड्राइव अगले 5 से 6 दिन तक प्रभावित रह सकती है। राज्य सरकार ने एक तरीके से एक SOS जारी किया था और ये कहा था कि उनके पास वैक्सीन की केवल 3,30,000 डोजेस ही मौजूद हैं, जो आज या फिर कल तक खत्म हो सकती हैं। तमिलनाडु में वैक्सीन के 6 जून तक आने की संभावना जताई गई है। मुगिलन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मुगिलन, गुड मॉर्निंग। सो एज फार एज द वैक्सीनेशन सिचुएशन इज कंसर्न इन तमिलनाडु, it is pretty much on tenterhooks, but if you can just give us a sense as to what is the status of vaccine stocks currently and all. मुगिलन से हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल ही हमने ये एक खबर दिखाई थी जहां पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को लेकर चेताया था कि उनके पास वैक्सीन स्टॉक काफ़ी कम संख्या में रह गया है और अगर जल्द ही केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है तो वैक्सीनेशन ड्राइव को रोकना भी पड़ सकता है। और अब जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं तमिलनाडु में वो भी इसी बात को बयां करते हैं। चलिए वापस चलते हैं। हमारे संवाददाता मुगिलन इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुगिलन, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन drive in the state of Tamil Nadu, and what is the current status of vaccine stocks which is available with the state? Only last week we saw, that is from last Sunday, we have seen Tamil Nadu shown a very great improvement in taking up the vaccine. On a daily average, we have seen at least 2.5 to 3 lakh people was vaccinated at a daily basis. But starting today, starting yesterday, we are facing a very acute shortage of vaccine. So far, Tamil Nadu is left only with 3,30,000 vaccines until the next supply of vaccines reach Tamil Nadu. Even the vaccines that have been procured by the Tamil Nadu, that is the 13.5 lakh of vaccine that was procured directly by the government, also is running out. Now the entire state is left only with the 3,30,000 doses of Covaxin, and it has been already sent to all the districts. The districts which have stocks are administrating the doses now. So until the next supply comes, the Tamil Nadu will not be able to vaccinate its citizens. And now, as we speak, the Tiruchi district administration has already announced that the vaccination drive will not happen in the district today. And we have to wait and watch how the supply will happen. As far as the month of May is concerned, the central allocation for Tamil Nadu stands at 18 lakh doses. And in that 18 lakh doses, what we could hear from the Tamil Nadu Health Secretary is that more than 1.7 lakh doses are being kept pending by the central government, and the central government has not supplied the vaccines, and there is a acute shortage also, and the supply which has to come for the month of June also will start only from June 6th, and June 9th is what has been communicated by the central government to the Tamil Nadu Health Department. So from today till June 6th, there will be a acute shortage in most parts of the state. The most centers will run out of vaccine shortage is what we could hear from the health department officials. So for next 3 to 4 days, definitely yes, there will be acute shortage. The vaccines will not be available in most of the vaccine centers in Tamil Nadu. And now Tamil Nadu state government is in touch with the central government, but we have to wait and watch whether the central government will supply the pending more than 1 lakh vaccines to the state to as a buffer to vaccinate the people until the June month stock comes. But we have to wait and watch when the central government will make a decision on it. When we spoke with the health secretary yesterday, he also have confirmed that there is a
pending of more than 1 lakh doses which has to come to Tamil Nadu, but the central government has not given any concrete date or any date on which the pending vaccines will reach this state of Tamil Nadu. So with all this uncertainty, in all likelihood, more centers in most parts of the state will go dry. There will be no vaccine available in Tamil Nadu. Right, Mugilan, thank you for sharing all those details. और तमिलनाडु के बाद अब आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में टीकाकरण का क्या हाल है। यहाँ पर 10 जून से 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन की आखिरकार शुरुआत हो सकती है और ये तब होगा जब दिल्ली में 5.5 लाख वैक्सीन की डोजेस पहुंचेंगी। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली में 18 साल से सरकार का कहना है कि केंद्र ने 5.5 लाख वो वैक्सीन डोजेस को मंजूरी दी है। वहीं दिल्ली सरकार का ये दावा है कि शहर के हर युवा को टीका लगाने के लिए करीब 50 लाख डोजेस की जरूरत होगी। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से केंद्र को वैक्सीन डोजेस का कोटा बढ़ाने की अपील की है और साथ ही 31 मई तक 45 प्लस श्रेणी वाले लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए लगभग 20 दिनों का स्टॉक ही बचा हुआ है। आलोक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। आलोक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे दिल्ली के वैक्सीनेशन की स्थिति जानना चाहेंगे। अगर 18 प्लस के ग्रुप की बात की जाए तो पिछले 2 हफ्तों से ये पूरा का पूरा ड्राइव बंद पड़ा हुआ है। अगले 10 दिनों तक इसके शुरू होने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। कहाँ पर बॉटल नेक है आखिर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली सरकार इस मामले को उठा रही है मगर फिर भी इस मामले का समाधान हो क्यों नहीं रहा? जी गौरी, गुड मॉर्निंग। देखिए, दिल्ली में जो टीकाकरण शुरू हुआ युवा वर्ग का, वो 1 तारीख से शुरू हुआ था और उस समय उसके बाद जो सेंटर खोले गए वो लगभग 300 सेंटर खोले गए थे। अलग अलग जगहों पर स्कूल्स में जो है सेंटर बनाए गए जहां पर युवा वर्ग को टीका लगाया जा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल किसी भी सेंटर पे कोई टीकाकरण नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि जो वैक्सीन है उसकी खासी शॉर्टेज है और सबसे पहले कोवैक्सीन खत्म हुई और फिर उसके बाद कोविशील्ड खत्म हो गई। तो अब फिलहाल 1 हफ्ते से बिल्कुल बंद है। अभी तक जितने युवाओं को लगा है वो 8 लाख करीब युवाओं को दिल्ली के और एनसीआर की अगर हम बात करें, क्योंकि एनसीआर के भी युवा जाते हैं वहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए, तो 8 लाख युवाओं को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन दिल्ली सरकार के आंकड़ों की बात करें तो उनका कहना है कि लगभग 50 लाख युवा वर्ग को अभी भी टीका लगाना है और उसके लिए 50 लाख वैक्सीन चाहिए। लेकिन अभी जो सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आया है, वो केवल 5.5 लाख वैक्सीन का आया है, जो कि 10 तारीख से पहले तक उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख से दोबारा कुछ सेंटर्स पर यह टीकाकरण शुरू होगा, क्योंकि 5 लाख वैक्सीन का स्टॉक आ जाएगा। लेकिन वो भी कुछ ही समय तक रहेगा, क्योंकि 50 लाख अगर जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक पूरे दिल्ली के जो युवा वर्ग है उनको टीका नहीं लगेगा। हालांकि 45 साल के लोगों के लिए जो है अभी भी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए अभी भी टीकाकरण चल रहा है और उनपे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, लेकिन उसका भी कोवैक्सीन का स्टॉक काफ़ी कम बचा है। तो सरकारें क्या कर रही हैं पता नहीं, लेकिन एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलती है कि आप डायरेक्टली बात कीजिए, लेकिन बीच में इंटरवीन करके अब इस तरीके से रोड़ा अटकाती है, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। अभी फिलहाल देखना ये होगा कि कब वैक्सीन आएगी और कब युवाओं को दोबारा वैक्सीनेशन लगाने को मिलेगा। जी जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए।